नमस्ते दोस्तों। अगर हम इतिहास में झांक के देखें तो हमें देखेगा कि अलग अलग समय पर अलग अलग महासत्ताएं थी, फिर वो भारत हो, अरब हो, यूरोप हो या अभी का यूएसए हो। पर हमें ये भी जानना जरूरी है कि उस समय पर उन एम्पायर्स ने दुनिया को कैसे अफेक्ट किया। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1, लेट्स स्टार्ट विद द ग्रीक्स फर्स्ट। We all know about Alexander the Great, who is known for bringing beautiful Greek architecture and military tactics to conquer the whole world. Although he couldn't even conquer 1/10th part of Bharat. But if we look at history closely and unbiasedly, we will come to know that he executed thousands of individuals in every region he conquered. For example, लेबनान में एक छोटे से शहर को जीतने के बाद he ruthlessly took lives of 8,000 innocent people. 3,000 men, women, children were subjected to enslavement. Furthermore, Alexander crucified all the men of military ages, numbering no less than 2,000. और ये सारी डिटेल्स लेबनान के एक छोटे से शहर के हैं। Then imagine what he would have done in other countries, including भारत. Number 2, अरब और तुर्क. We all are aware of horrible things done to us by them. Rapes, loots, destructions of temple, forced conversion and brutal killings. Like the systematic and ruthless killing of hundreds of thousands of people in Armenia, or destroying and ending Byzantine Empire. And we all are aware of what rulers like Alauddin Khilji, Muhammad bin Tughlaq, Qutbuddin Aibak did to us. Nothing new, just destroying temple, killing and converting. Number 3, Europe. Let's first delve into England. Britishers were not just barbaric and looted the wealth of numerous countries, but also intentionally caused harm and destroyed every culture they came across. For example, they brutally killed Native Americans and destroyed Maya Inca culture. Also, the Maori culture of New Zealand and African culture were destroyed and suppressed. Their arrival in Australia had significant impact on their culture. From Bharat alone, they looted the wealth of $45 trillion. I don't need to say about conversions, missionaries and killings. Let's now talk about Germany. During Hitler's regime, he did terrible things to perpetrate genocide against the Jewish population. He ruthlessly invented horrible things using innocent people as a tool for his experiments. Not only Jews, but others including Romani people, Soviet prisoners of wars, and even German disabled people. जैसे जैसे जर्मनी के पास पावर आने लगी, वैसे वैसे उस पावर का यूज सिर्फ डिस्ट्रक्शंस और वॉर्स में होने लगे, रिजल्टिंग इन वर्ल्ड वॉर 2, which caused death of millions of people all over the world. And the other European countries like France and Spain did nothing better than these. नंबर 4, आज का सुपर पावर अमेरिका, जो खुद तो युद्ध करता ही है पर अपने वेपन्स को बेच के प्रॉफिट कमाने के लिए दूसरे देशों के पीछे भी युद्ध करवाने को कतराता नहीं, जो खुद बात तो ह्यूमन राइट्स और सिविल लिबर्टीज की करता है और खुद वियतनाम, ईरान, इटली जैसे देशों पे आक्रमण करता है. Also the countries like Russia and China caused wars, economic and financial crisis on numerous countries. But जब भारत एक महासत्ता थी, एक सुपर पावर थी, तब ना ही हमने किसी पे अत्याचार किए, ना ही जुल्म जबरदस्ती की. This doesn't mean कि wars were not fought. दो एम्पायर्स के बीच युद्ध तो होते थे, पर कभी भी सामान्य जनता को तकलीफ नहीं होती थी. Unlike the European and Islamic invaders who used to attack civilians, burn their houses, looting their jewelries and valuables, raping women, destroying temples and many more things that we cannot even imagine. जब भारत एक सुपर पावर थी, तब हमने शांति को बढ़ावा दिया, समृद्धि को बढ़ावा दिया, साहित्य को, कलाकारी को, चित्रकारी को, शिल्पकारी को, संगीत, नृत्य, संशोधन को बढ़ावा दिया. हमने डिस्ट्रक्शन पे नहीं, हमने कंस्ट्रक्शन पे फोकस किया. इतना ही नहीं, साउदर्न ईस्ट देशों में जाकर उनको कपड़े पहनना, घर बांधना, खाना बनाना, ऐसे बेसिक चीजों से लेकर यूरोपियन और अरेबियन लोगों को साइंस मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स जैसे शून्य, अरिथमेटिक ऑपरेशंस, डेसिमल सिस्टम जैसी चीजें सिखाई. चीन, कोरिया, थाईलैंड जैसे देशों में स्पिरिचुअल नॉलेज, सत्य, शांति, अहिंसा का संदेश पहुंचाया. हमने बौद्ध, जैन धर्म और गीता जैसे ग्रंथों के माध्यम से शांति फैलाई. सबको योग, आयुर्वेद, प्राणायाम सिखा के निरोगी और दीर्घायुषी बनना सिखाया. फोर्सफुली कन्वर्जन की तो कॉन्सेप्ट ही नहीं थी भारत में. यहाँ पे अपने धर्म प्रसार के लिए डिबेट्स होते थे. अपने संप्रदाय को बढ़ाने का इससे सुंदर और शांतिप्रिय मार्ग क्या हो सकता है. माना कि 1000 साल से चले आई इन कंटिन्यूअस इन्वेजन्स की वजह से भारत अपनी पहचान को भूल चुका था, पर इतने जेनोसाइड और अत्याचार सहन करने के बाद भी भारत आज फिर से खड़ा हो रहा है, अस्तित्व का एहसास हो रहा है. भारत इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड.
It has second largest military force. ISRO is making us proud by launching Chandrayaan and missions like Gaganyaan. आज भारत में 37 किलोमीटर पर डे के रिकॉर्ड से रोड्स बन रहे हैं. नंबर ऑफ पीपल विदाउट टॉयलेट्स हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 550 मिलियन टू 50 मिलियन. हमारी प्रगति हमारे एशियन गेम्स 2023 में 107 मेडल्स और पैरा ओलंपिक में 111 मेडल्स जीतकर भी झलक रही है. जैसे जैसे भारत की ताकत बढ़ रही है वैसे वैसे हम देख सकते हैं कि भारत बाकी देशों को मदद करने में सबसे आगे है. कोविड पैंडेमिक में भारत ने ब्राजील, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान जैसे कई सारे देशों को वैक्सीन प्रोवाइड की थी, जबकि अमेरिका और चीन देश वैक्सीन सिर्फ अपने देश के लोगों तक ही सीमित रख रहे थे. सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ भी इस्कॉन टेम्पल, स्वामीनारायण टेम्पल, आर्ट ऑफ लिविंग के सेंटर्स और बड़े मंदिर थे, पैंडेमिक के समय पर उन सबको कोविड सेंटर्स में कन्वर्ट किया गया था. वहाँ पे बेड्स लगवाए गए थे. जब फरवरी 2023 में तुर्कस्तान में अर्थक्वेक आया था तब भारत वॉज अमंग्स द फर्स्ट कंट्रीज टू हेल्प देम इवन दो तुर्की ऑलवेज सपोर्टेड पाकिस्तान एंड हेटेड भारत. भारत पूरी दुनिया को योग सिखा रहा है. भारत इज द स्पिरिचुअल हब ऑफ द वर्ल्ड. इन शॉर्ट, जब भारत का विकास होगा तभी पूरी दुनिया का विकास होगा. इसलिए भारत नीड्स टू राइज एंड डेफिनेटली भारत विल राइज. जय हिंद, जय भारत.